जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sir. Okay, so hope both of you are fine. So we start with the our class today, and today we have to start with the new topic, that is the extreme environment. By now we have covered the three types of environments. First we discussed the introduction to the course. Then we discussed the terrestrial environment, we discussed the aquatic microbiology and aeromicrobiology. And today we are going to discuss the extreme environment. So I believe you can see my screen. Ji, sir. Okay, so we are going to discuss the extreme environment. First question is, what is extreme? So if we talk of the environment, if we talk generally of the extreme, then the anything which is towards the extreme side, towards the uppermost or towards the lowermost side, that is called as extreme. And if we talk of the environment, then environment is defined as extreme if the environmental conditions are at one of the two extremes, means high or low. So the two extremes may be high or low. These include pH. Now the extremes may be too high pH or too low pH, or in other words you can say too alkaline conditions or too acidic conditions. Then is the temperature, too hot or too cold. Then is the salinity, too high salinity or absolutely normal conditions, or you can say if you are talking of the water, either it is marine water or very high salinity or it is a distilled water. Then the pressure, very high pressure or absolutely no pressure. Similarly, the nutrients, nutrient rich environment or pure environment. So the extreme of any side is called as extreme environment. It is not necessary that if the conditions are, or for example, if we talk of the temperature, if the temperature is too high, only then we call it extremes. If the temperature is even too low, even then we can call it as extreme environment. So any side is extreme environment. Or in other words, you can say the environments in which conditions select for extremely low microbial diversity. So इसका one very important aspect है जो वो ये है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे फिर माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एक्सट्रीमली लो हो जाएगी. Say for example, if the temperature is very high, तो वहाँ पे सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकेंगे जो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं. सो उनकी टाइप्स कम हो जाएंगी. अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले भी होंगे, लो टेम्परेचर वाले भी होंगे. ठीक है. सिमिलरली पीएच इज वेरी अल्कलाइन, तो वहाँ पे एसिडिक वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. सो एक्सट्रीम कंडीशंस में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बहुत लो हो जाती है, बहुत कम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर वहाँ पे पाए जाते हैं. Why this extreme environment
is important to the environmental microbiologists. This is important because this environment harbor unique microorganisms with activities and metabolic strategies that are not only of scientific interest but also have commercial potential. So environmental microbiologists इसलिए एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं कि इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ऐसे यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिनकी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक स्ट्रेटजीज सिर्फ साइंस ही के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उनकी बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशन होती है। ये भी हम पढ़ेंगे इसको कि उनकी क्या कमर्शियल एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है। Microbial adaptation is actually to amazing level of stresses. So microorganisms, they have the ability to adapt to very high level of stress. Stress means any sort of stress. That may be pH stress, that may be temperature stress, that may be water stress. When we say temperature stress, तो याद रखें इसका मतलब यही है कि बहुत हाई टेम्परेचर हो या बहुत लो टेम्परेचर हो। सिमिलरली व्हेन वी से सैलिनिटी स्ट्रेस, तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो या बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है उन स्ट्रेसेस को अडेप्ट करने की, उन एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट करने की। अब ये अडेप्टेशन साइंटिस्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और व्हाई इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट? नंबर वन, for development of remediation approaches for some contaminated sites, including acid mine drainage sites and radioactive waste sites. Now, for example, you have a site where there is an issue of acid mine drainage, or there is issue of radioactivity, or simple words में आप कह लेते हैं there is the problem of heavy metal contamination. वहाँ पे heavy metals बहुत ज़्यादा हैं। उन heavy metals को remediate करने के लिए आपको अगर बायोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करनी है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन हैवी मेटल्स को अडेप्ट ही नहीं कर पाते तो वो वहाँ पे उसकी रेमिडिएशन क्या करेंगे? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये एबिलिटी कि वो हैवी मेटल्स को अडेप्ट कर सकें, ये फिर रोल प्ले करती है उसकी रेमिडिएशन में। ठीक है। सिमिलरली साल्ट इफेक्टेड कंडीशंस हैं या पीएच की कंडीशंस हैं, से फॉर एग्जांपल वेरी हाई अल्कलिनिटी है वहाँ पे, अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे अडेप्ट ही नहीं कर पाता, वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो वहाँ पे आपकी बेनिफिट के लिए वो क्या करेगा? सो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन है टू द स्ट्रेस कंडीशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्टिकुलरली अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना हो रहा है जिससे जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है दैट इज राइजिंग। ठीक है। सो अब राइजिंग टेम्परेचर पे अगर जो से फॉर एग्जांपल हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस राइजिंग टेम्परेचर को अडेप्ट ही नहीं कर पाते तो फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं ना होगी, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट essential nutrient for crop growth. So as a result we will have to compromise on crop growth. ठीक है। इसके अलावा these are of interest for application of novel enzymes adapted to temperature or pH extremes. अगर वो उस
हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर गए हैं, तो तब ही पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करें जो हाई टेम्परेचर पे या एक्सट्रीम पीएच पे भी इफेक्टिव हों। अदरवाइज वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे वो हाई टेम्परेचर या हाई पीएच पे इफेक्टिव नहीं होंगे। सो और एंजाइम्स की इज ए ह्यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो अगर ऐसे एंजाइम्स, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट कर लेते हैं टू द एक्सट्रीम कंडीशंस, तो दे कैन प्रोड्यूस novel enzymes, ठीक है, unique enzymes. Then these adaptations are essential for understanding evolutionary history and possible impacts of future climate change. ये evolutionary history को आपको अंडरस्टैंड करने में बड़ा हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ख़ास जगह पे जाते हैं, एक ख़ास से कॉन्टिनेंट पे जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं जो ड्राई कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। तो आप फिर गेस करते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी ज़माने में पानी नहीं होता था, ड्राई कंडीशंस होती थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो तो ससेप्टेबल थे ड्राई कंडीशंस को वो तो ख़त्म हो गए, सिर्फ वही बचे हैं जो ड्राई कंडीशंस को अडेप्ट कर सके हैं। ठीक है, सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फिर अडेप्ट कर लेते हैं या जो सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। सो द टर्म एक्सट्रीमोफाइल्स is applied to an organism that has successfully adapted to environments where it is difficult or impossible for other organisms to survive. मैं ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सट्रीम कंडीशंस होती क्या हैं, कि जहाँ पे आम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर सकते, सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं जो उन एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को विच हैव सच एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एक्सट्रीम कंडीशंस, उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एंड आजकल की माइक्रोबायोलॉजी में व्हेन द एवरीबॉडी इज टॉकिंग ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस, तो ये एक्सट्रीमोफाइल्स they have gained even more popularity or more importance considering the phenomenon of climate change. कुछ एग्जांपल्स इसकी लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट की, तो एंटार्कटिका में एक मैकमर्डो ड्राई वैली है। सो मैकमर्डो ड्राई वैलीज जो हैं एंटार्कटिका की, these are one of the driest and coldest ecosystem on earth. So अर्थ पर ये ड्राइएस्ट और कोल्डेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे द एवरेज मीन एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर इज -27.6 डिग्री सेंटीग्रेड and the average surface soil temperature is -26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो सरफेस एयर का टेम्परेचर वहाँ पे -27.6 होता है और सॉइल का टेम्परेचर -26.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इकोसिस्टम हैज द ओनली permanently ice covered lakes on earth, varying in ice cover thickness from 3 to 5 meters. So हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर ये इकोसिस्टम वाहद है जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है और उस बर्फ की तह 3 से 5 मीटर तक होती है। वो बर्फ 3 से 5 मीटर तक थिक होती है। So this can give you the idea how extreme the conditions are. Now here the extreme is towards lower side,
ठीक है, टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। अब what is interesting about cold adapted microorganisms? तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन कंडीशंस को अडेप्ट कर गए हैं, उनमें ख़ास चीज़ क्या है, उनमें ख़ास इंटरेस्ट क्या है? जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो है उसमें ये है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज कोल्ड अडेप्टेड एंजाइम्स। ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, these enzymes can operate efficiently at low temperatures, while at high temperature the enzymes become unstable। ठीक है, सो आप कोई बायोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आपने एंजाइम्स यूज़ करनी है, तो अगर वो लो टेम्परेचर पे काम नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपका प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उस हीट एनर्जी पे कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर वो लो टेम्परेचर पे ही ऑपरेट कर जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लो टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अपना काम कर देगा। So these two properties of cold active enzymes make them suitable for biotechnological applications. So ये जो दो एबिलिटीज़ हैं इन कोल्ड एक्टिव एंजाइम्स की, ये इनकी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को आप कहते हैं उसके लिए इसे सूटेबल बनाते हैं। कैसे? Reactions carried out at low temperature require less energy input, जैसे मैंने अभी बताया आपको, which is a direct cost saving. So उस रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो लेस एनर्जी पे ही काम कर जाएगा। Then reactions can be stopped quite easily by simply raising the temperature. आप रिएक्शन रोकना चाहते हैं, जस्ट थोड़ा सा टेम्परेचर रेज कर दें, रिएक्शन रुक जाएगा। अदरवाइज आपको पता नहीं क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, उसमें कोई केमिकल डालने पड़ेंगे, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करते हैं, वो एंजाइम काम करते हैं, सो आप सिंपली उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज करेंगे तो टेम्परेचर जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। लो टेम्परेचर एंजाइम्स दैट हैव बीन एग्जामिन्ड और यूज्ड इन इंडस्ट्री इंक्लूड, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने लगा हूँ लो टेम्परेचर एंजाइम्स की जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। ये आपको अंदाज़ा देंगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट हैं ये लो टेम्परेचर पे काम करने वाले एंजाइम। अल्फा अमाइलेज कहाँ पे यूज़ होता है ये? ब्रेड मेकिंग, टेक्सटाइल्स, ब्रूइंग and detergents. Then comes the cellulase. This is used in textiles and the pulp and paper industries. Then is the beta-galactosidase. This removes lactose from milk. Then is the lipase. This is used in detergents and flavorings. And proteases is used in detergents and meat tenderizers. ठीक है? Then comes xylanase, which is used in bread making. ठीक है? So considering the processes where these enzymes are used, you can realize how important these enzymes are. So this was about the low temperature. Then there may be the other possibility that the temperature is high. So what happens in high temperature environments? Many mechanisms allow microorganisms to survive at temperatures that would normally denature proteins, cell membranes, and even genetic material. So बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे टेम्परेचर पे भी सरवाइव करवा देते हैं
जिस टेम्परेचर पे प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन डीनेचर हो जाती है, इवन जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो जाता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे अडॉप्ट करते हैं खुद को कि ये उस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। The key to enzyme function, whether in cold or hot environments, is the maintenance of an appropriate balance between molecular stability and structural flexibility. So major function जो enzymes का है कि उन्होंने cold conditions में बेटर काम करना है या हॉट कंडीशंस में बेटर काम करना है, उसकी जो की फंक्शन है वो ये है कि क्या वो अप्रोप्रिएट बैलेंस रख सकते हैं अपनी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी में एट दैट टेम्परेचर. If they can maintain that appropriate balance between their molecular stability, means their molecule remains stable and their structure remains stable, ये टेम्परेचर के बढ़ने से डैमेज नहीं होती है, तो इसका मतलब है वो एंजाइम फिर उस जो भी वो कंडीशन है कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट उसमें ग्रो कर सकेगा. सो किसी एंजाइम को देखने के लिए कि वो एंजाइम हॉट एक्सट्रीम कंडीशंस रिगार्डिंग टेम्परेचर हॉट और कोल्ड में फंक्शन करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसमें एबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट बैलेंस मेंटेन कर सके अपनी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी में और स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी में. ठीक है. And one general adaptive mechanism exhibited by thermophilic microorganisms is the production of chaperones, which are specialized thermostable proteins that help refold and restore other proteins to their functional form following thermal denaturation. ठीक है. सो एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है कि जब थर्मल डीनेचरेशन होती है, कि जब प्रोटीन की थर्मल डीनेचरेशन मींस हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी डीनेचरिंग होती है, वो अपना फंक्शन या स्ट्रक्चर लूज करती है, तो उस वक्त वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम चैप्रोनिन्स कहते हैं. वो क्या करती हैं चैप्रोनिन्स? ये हेल्प करती हैं टू रीफोल्ड एंड रीस्टोर अदर प्रोटीन्स टू देयर फंक्शनल फॉर्म, कि वो दोबारा से प्रोटीन्स अपनी फंक्शनल फॉर्म में वापस आ जाती हैं. ठीक है. In addition, there are microbe-specific adaptations to increase protein stability at high temperature. इसके अलावा और क्या मैकेनिज्म होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब स्पेसिफिक अडेप्टेशन, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक खास अडेप्टेशन करता है विच इज स्पेसिफिक टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो माइक्रोब स्पेसिफिक अडेप्टेशंस करते हैं टू इंक्रीज प्रोटीन स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर. सो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए वो अपनी प्रोटीन को स्टेबल रखते हैं एट हाई टेम्परेचर. वो अडेप्टेशंस क्या हो सकती हैं? नंबर 1, an increased number of disulfide bridges. अगर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपने जहन में लाएं, आपने पढ़ी हुई है इवन बीएससी की क्लास में, तो उसमें वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, कैसे आप देखें कि उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, उसकी सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर पे अगर आप चाहें तो इसमें आप ऐसे समझ लें कि जैसे सीडी नहीं होती, तो सीडी में जो हॉरिजेंटल वो होते हैं स्टेप्स,
वो क्या करते हैं, वो साइड वाली लंबी जो स्टिक्स होती हैं उसको मेंटेन रखती हैं। इस तरह से आप कह लें कि जितने वो स्टेप्स ज़्यादा होंगे उतनी वो लकड़ी की दो जो साइड वाली लंबी लकड़ी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगी। सो क्या एक मैकेनिज्म क्या है कि वो डाई सल्फाइड ब्रिजेस की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाती है। देन इंक्रीज्ड इंटरेक्शंस अमंग एरोमेटिक पेप्टाइड्स, वहाँ पे जो एरोमेटिक पेप्टाइड्स होते हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। सो ये वो मैकेनिज्म्स हैं या वो अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी स्ट्रक्चर को या अपनी प्रोटीन को स्टेबल रखते हैं। एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हिज इट्स ओन मैकेनिज्म। In terms of cell membranes, most hyperthermophiles belong to the archaea. अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जितने हाइपरथर्मोफाइल्स हैं, अब हाइपरथर्मोफाइल्स नाम से ही समझ आ रही है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इन एक्सट्रीमोफाइल्स को नॉर्मली हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम आर्किया कहते हैं। ठीक है, सो आर्किया में नॉर्मली एक्सट्रीमोफाइल्स को शामिल किया जाता है। ऑल हाइपरथर्मोफाइल्स प्रोड्यूस ए यूनिक एंजाइम called DNA gyrase. This gyrase acts to induce positive supercoils in the DNA, theoretically providing considerable heat stability. So ये जो DNA gyrase है ये भी वही काम करता है कि वो जो कॉइल्स होती हैं, सुपर कॉइल्स जो होती हैं, उनमें जो DNA होता है उनको स्टेबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, there are numerous biotechnological applications for enzymes isolated from thermophilic microorganisms. So ऐसे microorganisms जिनको thermophilic microorganisms ऐसे enzymes जिनको thermophilic microorganisms से isolate किया जाता है उनकी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। आप गैस कर सकते हैं, वहीद या रमीज़ा, आप गैस कर सकती हैं कोई एप्लीकेशन हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स की? बड़ी कॉमन एग्जांपल है। सर याद नहीं आ रही कोई। ओके, सो द प्राइम एग्जांपल इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर मशीन आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी अपनी बीएससी की क्लास में या एमएससी में लाजमी देखी होगी। पॉलीसाइक्लिक चेन रिएक्शन, ये जो डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो द प्राइम एग्जांपल जो है इसकी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की वो पीसीआर मशीन है जिसे आप पीसीआर कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स लगाए जाते हैं, उसके साथ डीएनए के साथ वो एंजाइम्स शामिल किए जाते हैं और उस मशीन में, पीसीआर मशीन में उसको रखा जाता है और वो फिर वेरी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऐसे साइकिल्स चलते हैं उसके और उससे डीएनए की कॉपीज बनती हैं फिर, जिसको आप बाद में अलग से यूज करते हैं। ठीक है, सो और उसी की बेस पे फिर आप उसकी जेल रन करते हैं और उस जेल की बेस पे फिर आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। Organisms with growth temperature optima between 45 degrees centigrade and 80 degrees centigrade are called thermophiles.
सो जो 45 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो कर सकें उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, और जिनका टेम्परेचर ऑप्टिमा ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ग्रेट टेम्परेचर ऑप्टिमा का मतलब ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे उनकी मैक्सिमम ग्रोथ आती हो, तो जो 80 से ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ देती हों उनको हम हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। So these organisms inhabit hot environments up to and including boiling hot springs as well as undersea hydrothermal vents that can have temperatures in excess of 100 degree centigrade. So ये जो हाइपर थर्मोफाइल्स या थर्मोफाइल्स होते हैं ये हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं। कौन सी हॉट इन्वायरमेंट? These can be present even in boiling hot springs. ऐसे स्प्रिंग्स, ऐसे चश्मे जहाँ पे पानी उबल रहा होता है, गर्म इतना होता है। As well as undersea hydrothermal vents, समुंदर के नीचे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, बाज का तो उसकी वजह से किसी जगह से नीचे से वो गैसेस ऊपर निकल आती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, दैट कैन गो इवन इन एक्सेस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कंडीशंस में ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे पाए जाते हैं जिनको हम हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स हैव इवॉल्व्ड to grow optimally under very hot or very cold conditions. So ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि एक्सट्रीमोफाइल कहते ही उनको हैं जो बेस्ट ग्रो करते हैं वेरी हॉट में या वेरी कोल्ड कंडीशंस में। जो कुछ ऐसे होंगे जो वेरी हॉट कंडीशंस में ग्रो करेंगे उनको इस सेंस में एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो वेरी कोल्ड कंडीशंस में ग्रो करेंगे उनको इस सेंस में एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। देन कम्स, ये हमने बात की टेम्परेचर स्ट्रेस की, देन कम्स द डेसिकेशन एंड यूवी स्ट्रेस, ठीक है। You know, the deserts of the world represent both hot and cold, semi-arid to hyper-arid environments where extreme conditions severely limit primary productivity and thus the diversity of life, ठीक है। सो वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, पौधे नहीं ग्रो करते हैं, तो उनको यूज करके फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से लाइव इफेक्ट होती है कि जब प्राइमरी प्रोड्यूसर भी नहीं है तो उनको यूज करके फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स कैसे ग्रो करेंगे। लिहाजा ऐसी कंडीशंस में फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी जो डेजर्ट्स हैं कुछ, वहाँ पे गर्मियों में आप अक्सर खबरें सुनते हैं जी कि वहाँ पे लाइफ नहीं है जी, वो फलां जानवर मरने शुरू हो गए हैं जी, या फलां जानवर मरने शुरू हो गए हैं, बहुत ड्राई कंडीशंस हो गई हैं जी। ये थार की खबरें अक्सर आती हैं, बच्चों की पिक्चर्स आती हैं कि वो कहत पड़ा हुआ है, तो क्या बुरे हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं ग्रो कर सकते। सो इस वजह से वहाँ पे भी स्ट्रेस होता है। सो इस वजह से वहाँ पे फिर सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। फैक्टर्स लिमिटिंग माइक्रोबियल लाइफ इन द एरिड डेजर्ट्स इंक्लूड, होता क्या है डेजर्ट्स में, एक तो वाटर अवेलेबिलिटी का इशू होता है, पानी नहीं होता है, दूसरा टेम्परेचर बहुत अप होता है, एंड तीसरा there is intensity of UV radiation. So deserts में ये तीन मेजर स्ट्रेसेस होते हैं, एक पानी नहीं मिलता है, फिर गर्मी बहुत होती है, फिर UV रेडिएशन बहुत होती है। So जनरली आप लोगों को पता होगा कि जो एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं उनमें मीन एनुअल रेनफॉल जो है वो 25 से 200 मिलीमीटर तक होती है, और जो हाइपर एरिड डेजर्ट्स होते हैं उनमें तो वो 25 मिलीमीटर होती है, ठीक है।
एरिड और सेमी एरिड में तो फिर 25 से 200 मिलीमीटर तक एनुअल रेनफॉल है, जबकि हाइपर एरिड में तो 25 मिलीमीटर मैक्सिमम होती है। So water availability in a desert is not only determined by mean annual rainfall. So सिर्फ मीन एनुअल रेनफॉल से ही आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ पानी की कमी है, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितनी है और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन कितनी है। अगर बारिश हो रही है तो कितनी हो रही है और वहाँ पे इवेपोट्रांसपायरेशन कितनी हो रही है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन कितनी है। ठीक है। अगर बारिश तो हो रही है लेकिन साथ में टेम्परेचर बहुत हाई है जिसकी वजह से इवेपोट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंडीशंस तो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ सख्त गर्मी में जब बारिश होती है तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए, टेरेबल हो जाती हैं। हाइपर एरिड एरियाज आर डिफाइंड एज दोज with precipitation to potential evapotranspiration ratio less than 0.05. ठीक है, so less than 0.05 हो जाती है। so अब less than 0.05 होने का मतलब क्या है, या तो वहाँ पे बारिश कम हो रही है या वहाँ पे इवेपोट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तभी ये वैल्यू कम आएगी ना। ठीक है, so these hyper arid areas, these occupy 37% of the terrestrial surface. So खुश्की का 37% जो एरिया है वो अंडर हाइपर एरिड एरियाज आता है। Little is known about the arid and happy arid ecosystems that occupy 12%. Arid occupies 12% and hyper arid occupies 7.5% respectively of the global land area. So global land area का 12% एरिया एरिड है और 7.5% जो है वो हाइपर एरिड एरिया होता है। Then comes lithobiontic microbial communities. What are lithobiontic microbial communities? So lithosphere, you know, is the mineral portion or the rock portion. Microbial communities that inhabit rock surfaces and subsurface rock pores. So वो microorganisms जो रॉक की सरफेस पे या सरफेस में जो पोर्स हैं, जो सब सरफेस में रॉक की सब सरफेस में पोर्स हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको हम लिथोबायोटिक माइक्रोबियल कम्युनिटीज में शामिल करते हैं। ठीक है, these communities contain a surprising diversity of heterotrophic bacteria. इसमें हैरानकुन तौर पे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बड़ी किस्में पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। दैट आर सस्टेन, वो कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे, बाय फोटो ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। These include cyanobacteria and green algae. So ऐसे photoautotropic nitrogen fixing microorganisms में typical example है cyanobacteria, जिसे blue green algae भी कहते हैं, and green algae, and are capable of colonizing a diverse group of minerals including dolomite, granite, gypsum, halite, limestone, quartz एंड सैंडस्टोन। सो इन मिनरल्स के ऊपर या इनके पोर्स के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी मौजूद हो सकती हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए एक किस्म की फूड प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से वो वाले बैक्टीरिया
की एक खास डाइवर्सिटी वहाँ पे पाई जाती है। These hypolithic, hypolithic का मतलब है those which inhabit the underside of rock surface, जो rock surface के underside में रहते हैं, नीचे रहते हैं उसके। And endolithic, these inhabit pore spaces within the rocks, जो rocks के अंदर जो pore spaces होती हैं उनमें रहती हैं। So hypolithic क्या है, जो रॉक सरफेस के नीचे रहते हैं, और एंडोलिथिक कौन सी हैं, जो रॉक के अंदर जो पोर स्पेसिस हैं वहां पे रहते हैं। एंड दीज बोथ, जो रॉक के नीचे हैं या जो पोर्स के अंदर हैं, these are believed to exploit the protection offered by mineral surfaces that scatter UV radiation and trap limited water supplies while still allowing enough light penetration for photosynthesis. So, क्योंकि वो रॉक की सरफेस के नीचे रह रहे होते हैं या पोर्स में रह रहे होते हैं, सो इस वजह से ये फिर बच जाते हैं फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय, वो उसकी जो सरफेस होती है उसकी वजह से ये जो रेडिएशन वहाँ पे आ रही है, यूवी रेडिएशन, वो वहाँ पे स्कैटर हो जाती है, और थोड़ा बहुत पानी कम अज कम इनके पोर्स में या इनके नीचे चला जाता है रॉक्स के, जहाँ से इनको मॉइस्चर मिल जाती है। और बहरहाल इतनी जगह होती है कि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सके ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। सो इस तरह से ये हाइपोलिथिक और एंडोलिथिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। Cycles of desiccation appear to induce survival strategies for the cells rather than the ability to function under extreme conditions. ठीक है, सो इसमें फिर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट, जो सेल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, फंक्शन वो कोई खास नहीं करते हैं। सो कंडीशंस इतनी एडवर्स होती हैं कि वो इसी पे इक्तफा करते हैं कि वो जिंदा रह लें, जब सूटेबल कंडीशंस होंगी तब कोई फंक्शन भी कर लेंगे। The survival strategies identified include, अब तक जो survival strategies आइडेंटिफाई हो चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं? The ability to protect and repair DNA exposed to UV radiation. उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने डीएनए को जो एक्सपोज होता है टू यूवी रेडिएशन, उसको यूवी रेडिएशन से बचा भी सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन स्टेबिलिटी इन द डिहाइड्रेटेड स्टेट। डिहाइड्रेटेड स्टेट में भी जब पानी निकल जाता है, पानी नहीं होता है, तब भी वो अपनी प्रोटीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, और उन ड्राई कंडीशंस में भी वो अपनी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी, उसकी स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन रखते हैं। The primary adaptive mechanism of the cyanobacteria is the production of an extracellular polysaccharide sheet. So, जो मेजर, जो प्राइमरी अडेप्टिव मैकेनिज्म है वो क्या है? वो ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड शीट बना लेते हैं। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स की ये एक शीट बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिससे ये अपने बॉडी को कवर कर लेते हैं, और इस तरह ये खुद को यूवी रेडिएशन से बचा लेते हैं और डेसिकेशन से बचा लेते हैं। दिस शीट रेगुलेट्स अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ये शीट ही है जो पानी की एब्जॉर्प्शन और उसके लॉस को फिर रेगुलेट करती है। It serves as a matrix for immobilization of cellular components produced by the cell in response to desiccation.
and may protect cell walls during shrinking and swelling. So और क्या करती है ये शीट कि ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जब डेसिकेशन होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ खास सेल्स बनाते हैं, जैसे वो स्पोर्स बना लें, तो उनको ये शीट प्रोटेक्ट रखती है डेसिकेशन से। और ये इस श्रिंकिंग स्वेलिंग के प्रोसेस में जो उसकी वाल होती है उसको भी, सेल वाल को भी प्रोटेक्ट रखती है। ये शीट होती है जो ये काम करती है। Several molecules are produced by the cell in response to desiccation and UV exposure. जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनको ये मेम्ब्रेन फिर प्रोटेक्ट करती है। सो वो कौन कौन से हैं जो डेसिकेशन या यूवी की एक्सपोजर से बनते हैं? These are often found in the extra सैकेराइड जो लेयर है उस शीट के अंदर बनते हैं। और इसमें कौन से होते हैं? इसमें यूवी एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स होते हैं जो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं और रेडिकल क्वेंचर्स होते हैं, रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने वाले, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिकल्स एंड ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, उसमें ऐसे डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम या रेडिकल क्वेंचर्स होते हैं जो वहाँ से हार्मफुल रेडिकल्स को या ऑक्सीजन स्पीशीज को उसके उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर स्ट्रेस प्रोटीन्स, इसके अलावा वाटर स्ट्रेस प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं इस एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड लेयर जो होती है उसके अंदर ये कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी वजह से वो खुद को यूवी और डेसिकेशन स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ what knowledge can be gained from the study of organisms capable of survival in the extreme hyper-arid regions? So इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या नॉलेज, क्या इल्म हासिल होता है इनके मैकेनिज्म को स्टडी करने से कि ये कैसे सरवाइव करते हैं, उससे हमें क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इससे we can have an understanding of where life can occur in the hyper-arid regions on Earth, helps to narrow and focus the search for life beyond our planet. So इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी ज़मीन के अलावा और कहाँ पे जिंदगी तलाश करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल it has been suggested that life would have been forced into endolithic habitats on Mars as liquid water slowly disappeared from the planet. कि जो मरीख है उसके ऊपर पहले पानी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पानी खुश्क हो गया, तो हमने देखा कि वहाँ पे लाइफ, एंडोलिथिक लाइफ पाई गई। एंडोलिथिक हम पढ़ चुके हैं कौन सी होती है, जो रॉक्स के अंदर पोर्स में रहती है। तो वहाँ पे कुछ पानी बचा जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव कर सके। ठीक है, सो ये चीज़ अगर हमें हेल्प करती है टू क्या कहना चाहिए, to determine the direction of our future research, कि हमें कहाँ पे लाइफ को तलाश करना है। Expanded knowledge of microbial diversity in hyper-arid regions could be used to evaluate precipitation history। आप precipitation history को evaluate करना चाहते हैं तो भी आपको हाइपर एरिड रीजन्स का ये फिनोमिना अगर आप समझ लेते हैं,
या माइक्रोबियल डाइवर्सिटी आप समझ लेते हैं कि वहाँ पे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ हाइपर एरिड कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली समझ लेंगे कि इसका मतलब है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। Identification of heat and desiccation tolerant mineral oxidizing microbes from among the novel populations present in arid deserts can be exploited for the microbially driven heap leaching strategy used by mining companies to extract minerals such as copper from low-grade ores. So, अगर आप हीट एंड डेसिकेशन टॉलरेंट मिनरल ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर लें तो क्या हो सकता है, उनको आप यूज कर सकते हैं एरिड डेजर्ट्स में। कैसे, किस पर्पस के लिए कि वहाँ पे जो लो ग्रेड ओर्स हैं जिनमें वो मिनरल जो आप आइसोलेट करना चाहते हैं वो बहुत कम होती है, उनको लो ग्रेड ओर्स कहते हैं। वो केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, उनको आइसोलेट करना बड़ा महंगा पड़ता है। तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। आगे जाके आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तो वहाँ पे फिर आप हीप लीचिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, जिसको अब ये हीप लीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस मिनरल को सॉल्युबलाइज करते हैं और वो मिनरल लीच डाउन होकर नीचे चले जाती है। नीचे पॉन्ड बनाया होता है, उस पॉन्ड में से उस मिनरल को अलग कर लिया जाता है और फिल्ट्रेट को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, so that was about the UV radiation and desiccation stress. Then comes the high solute stress or the extreme conditions due to high salts. Some microorganisms which are called as halophytes, they have evolved to grow best at reduced water potential, and some extreme halophytes even require high levels of salts for growth. So कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं वो बेस्ट ग्रो कर सकते हैं एट रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल। रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल का मतलब है हाई साल्ट कंसंट्रेशन, एंड क्योंकि आपको पता है कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स लोअर द वाटर पोटेंशियल, द सॉल्यूट पोटेंशियल। Some extreme halophiles even require high levels of salts for growth, और कुछ एक्सट्रीम हेलोफाइल्स ऐसे भी होते हैं जिनको इवन अपनी ग्रोथ के लिए हाई लेवल ऑफ साल्ट्स चाहिए होता है। कुछ ऐसे हैं जो लो साल्ट्स पे हाई साल्ट्स पे ग्रो कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं एक्सट्रीम हेलोफाइल्स जिनको ग्रो करने के लिए हाई साल्ट कंसंट्रेशन चाहिए होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हैलोटॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं which can tolerate some reduction in the water activity of their environment but generally grow best in the absence of the added solutes. So best grow करते हैं वो अगर salts ना हो तो, लेकिन अगर salts हों भी to some extent तो भी वो grow कर लेते हैं। इनको हम हैलोटॉलरेंट कहते हैं। You know that the water activity becomes limiting to an organism when the dissolved solute concentration in its environment increases. ठीक है, ये आप लोगों ने BSc की क्लास में पढ़ा है कि जब साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सॉइल में तो क्या होता है कि बजाय इसके कि वहाँ से पानी पौधा ले, पौधे के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब जब बाहर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब है कि वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसकी वजह से
पौधे के अंदर से सारा पानी बाहर आ जाता है और पौधे की डेथ हो जाती है। ठीक है। टू काउंटर एक्ट दिस सिचुएशन, फिर इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस और अकोमोलेट इंट्रासेलुलर कंपैटिबल सोल्यूट्स। अपने सेल के अंदर वो ऐसे साल्ट्स बनाते हैं, जैसे पोटेशियम है, ग्लिसरॉल है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन बीटेन है, जो क्या करते हैं, अंदर भी वाटर पोटेंशियल को कम कर देते हैं। जब अंदर भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है सेल के, तो फिर सेल का पानी बाहर नहीं निकल पाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। Then comes the low pH or acid environment. Some organisms have evolved to grow best at low or high pH, but most organisms grow best between pH 6 and 8. ठीक है। So normally 6 से 8 pH जो है, इस पे ऑप्टिमम ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व हो चुके हैं जो बहुत लो या बहुत हाई पीएच पे भी ग्रो कर सकते हैं। The internal pH of a cell must stay relatively close to neutral, even though the external pH is highly acidic or basic. So बाहर की पीएच जो मर्जी हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, सेल को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर की पीएच को न्यूट्रल पे रखना है अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं। सो फिर एसिडोफाइल्स क्या करते हैं? दे सर्वाइव बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एसिडोफाइल्स क्या करते हैं? एसिडोफाइल्स वो होंगे जो एसिडिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। दे सर्वाइव बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। वो अपनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज द एसिडोफाइल्स मेंटेन a neutral cytoplasmic pH by actively transporting H ions out of the cell. अब जब बाहर pH लो है, तो लो pH का मतलब है कि बाहर H ions ज्यादा हैं, तो बाहर H ions की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर H ions की कंसंट्रेशन कम होगी। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत H ions बाहर से अंदर चले जाएंगे और अंदर pH लो हो जाएगी, जो नुकसानदेह होगी। सो फिर जो एसिडोफाइल्स हैं, इनमें मैकेनिज्म होता है कि ये वो एक्स्ट्रा H ions जो अंदर जाते हैं उनको एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालता रहता है और इस तरह से अपने साइटोप्लाज्म की पीएच को न्यूट्रल पे मेंटेन रखता है। एंड सेम इज ट्रू फॉर अल्कलोफाइल्स, कि उनके अंदर OH ions ज्यादा जाते हैं तो वो उन OH ions को बाहर निकालता रहता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर साइटोप्लाज्मिक पीएच। और इससे अगर कभी आप थोड़ा सा सोचें तो देखिए आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने कितना कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ बनाई है। कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी ये सिस्टम रख दिया है कि वो कैसे अपने आप को सरवाइव रख सकता है, कैसे वो अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है। Then is the high pressure. This is important particularly in deep sea. कि डीप सी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब उसके ऊपर पानी होता है, तो लिहाजा उस पानी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इनको हम बैरोफाइल्स कहते हैं, बारोफाइल्स या बैरोफाइल्स, which can be tolerant to more than 1000 bar pressure. So 1000 बार तक प्रेशर जो है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। And also
the साइक्रोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन आल्सो सर्वाइव एट लो टेम्परेचर। साइक्रोफिलिक कौन से होती हैं? जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो अब जब लो टेम्परेचर है तो इसका मतलब है उसके ऊपर तो आइस जमी हुई होगी। अभी हमने पढ़ा था कि वो कितने मीटर तक थिक होती है लेयर, तो उसके नीचे भी अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं। लाइफ इन डेप्थ, these can live in depth adapted to darkness। तो डेप्थ में ये सर्वाइव कर लेते हैं इस तरह से कि ये फिर डार्कनेस को अडेप्ट कर जाते हैं। दे हैव लॉन्ग चेन polyunsaturated fatty acids in their membranes। इनकी membranes में लॉन्ग चेन polyunsaturated fatty acids होते हैं। Then comes no nutrients or ultra pure water। अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो उसमें एल्गी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और इसकी वजह से वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं और इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर नो न्यूट्रिएंट हो, कोई न्यूट्रिएंट हो ही ना, अल्ट्रा प्योर वाटर हो, तो उस पानी की अगर कंटेमिनेशन हो जाए और somehow or the other अगर वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएं तो these can create a great damage to the industry such as semiconductor, medical and other industries। कि अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री है, कोई मेडिसिन बना रहे हैं और आप बड़ा प्योर स्टरलाइज्ड ऑटोक्लेव डबल डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया तो आपकी वो मेडिसिन इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी, वो जो मेडिसिन आप बना रहे हैं वो तो तबाह हो जाएगी। सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी हमें अवॉइड करना होता है। अब कुछ हो सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर लेते हैं। सो इसलिए मेडिसिन इंडस्ट्री को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। Very few organisms can survive in ultra pure water। बहुत कम organisms हैं जो ultra pure water में grow कर सकते हैं। So ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है डिफरेंट स्ट्रेसेस में, डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं। सो अगर इस सारे को हम समराइज करना चाहें एक टेबल की फॉर्म में तो हम कह सकते हैं कि ये वो टेबल है कि स्ट्रेस कौन सा है, टेम्परेचर, सेल पे उसका असर क्या होता है कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाती है और चेंज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हो जाती है। बायोकेमिकल अडेप्टेशन क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड टॉलरेंट एंजाइम्स बाय अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन और इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन लाइपेड्स or secretion of antifreeze proteins and enzymes active at low temperature। और इसकी एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? थर्मोफाइल्स एंड साइक्रोफाइल्स। और अगर वाटर डेफिसिट और साल्ट स्ट्रेस हो तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाती है और एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तो बायोकेमिकल अडेप्टेशन क्या होती है? चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स प्रोड्यूस्ड, मेंटेनिंग साल्ट इन साइटोप्लाज्म एंड अपटेक और सिंथेसिस ऑफ कंपैटिबल फ्लूइड्स। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं? ओस्मोफाइल्स, जीरोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। देन अगर पीएच की बात करें तो क्या होता है? प्रोटीन डीनेचरेशन हो सकती है, एंजाइम इनहिबिशन हो सकती है। और अडेप्टेशन क्या होती है? इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन प्रोटीन्स अफोर्डेड बाय इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्गर साल्ट ब्रिजेस। Organisms that can secrete a surplus of protons or block extracellular protons from the cytoplasm
by blocking membrane composition। और इसमें कौन से आते हैं? एसिडोफाइल्स। इसी तरह से अगर एयरेशन स्ट्रेस हो जाए, ऑक्सीजन रेडिकल्स डैमेज मेम्ब्रेन लाइपेट्स। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के रेडिकल्स हों तो वो मेम्ब्रेन लाइपेट को डैमेज करते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और डीएनए को डैमेज करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं। और बायोकेमिकल अडेप्टेशन क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल्स बाय कैटालेज एंड सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स, मीथेनोजेंस, sulfur and nitrogen users। So this is all for this chapter। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Any question? नो सर। No question? Should we start with the नहीं next सर। chapter or wait till the next week? जी सर। सर वो जो पोस्टर बनाने के लिए आपने दिए थे वो तो नहीं बनाना आया मुझे। क्या? सर जो आपने पावर पॉइंट पे असाइनमेंट के लिए पोस्टर कहा था ना, हाँ जी। सर वो नहीं बनाना आया मुझे। क्यों नहीं आ रहा भाई? आजकल कौन सा काम सर है जो वो नहीं आप सीख सकते नेट से? सर जो साइकिल है हाँ जी। तो वो उसकी तो पिक्चर फिर करेंगे ना, पिक्चर ही ठीक है, उसकी साइकिल की लगाएंगे। पिक्चर लगाएंगे आप कहीं से लेके, लेकिन उसका रेफरेंस देंगे कि आपने कहाँ से ली है। जी सर लेकिन ठीक है। उसकी अरेंजमेंट तो आपने करनी है ना, कहाँ पे साइकिल लगाएंगे, कहाँ पे आप प्रोसेस लिखेंगे, इस तरह से उसको इतना खूबसूरत प्रेजेंटेबल बनाना है कि एक आम आदमी उसे समझ सके। हम उसको प्रिंट कराएं और प्रिंट करा के कहीं पे डिस्प्ले कर दें। आप बेशक अपने घर में डिस्प्ले कर लें, आपकी स्टूडेंट लाइफ की यादगार रह जाएगी अगर वो ठीक हो जाएगा तो। लेकिन वो आपने बनाना है। इसका पर्पस, ये असाइनमेंट देने का आपको दो पर्पसेस हैं। एक, आपको पोस्टर बनाना आए, दूसरा आप उस साइकिल को पढ़ें। क्योंकि अब जो अगला चैप्टर है उसमें उस साइकिल्स की वजह से इन्वायरमेंट को क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी को क्या होता है, हमने ये चीज़ें पढ़नी है। ऑफ कोर्स अब इस स्टेज पे बीएससी में मैं आपको दोबारा से वो साइकिल रिपीट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपने बीएससी में भी पढ़े हैं, एमएससी में भी पढ़े हैं। तो इसलिए मैंने वो जी आपको सर वो तो। असाइनमेंट दी है कि आप उन साइकिल्स को बुक में से पढ़ें, नेट से देखें और बुक्स कंसल्ट करें। जौन सा साइकिल, एक साइकिल बहुत सारी बुक्स में बहुत तरह से इंटरप्रेट किया होता है, जौन सा आपको इजीली समझ आता है उसको लें और वो बनाएं और साथ में उसके प्रोसेसेस को लिखें। और अभी मैं अगला चैप्टर शुरू करता हूं तो मैं आपको बताता हूं, उसके साथ एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, वो मैं अभी अभी आपको मैं शेयर करता हूं आपके साथ। एक मिनट मुझे दें सिर्फ। अगला चैप्टर हमने ये पढ़ने हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ये देखें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स फॉर इन्वायरमेंट, जो मैं आज शुरू करना चाहता था लेकिन चलें अब आप कहते हैं तो नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेंगे कि इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो ये वो असाइनमेंट है जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें कि इसमें फास्फोरस मिसिंग है, वो आप डाल लें। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। आयरन निकाल दें, आयरन की जगह पे फास्फोरस कर लें। वैसे अगर आप आयरन भी रख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आयरन भी यूज होने हैं, आप आयरन को भी रखें। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन साइकिल्स, and discuss important transformations or each cycle. Also discuss human activities, how human activities may affect the environment। ठीक है, ये चीज आपने लिख के मुझे सबमिट करनी है
कि ये साइकिल्स के ह्यूमन एक्टिविटीज इन साइकिल्स को और कॉन्सिक्वेंटली इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज करती हैं। बात की समझ आ गई है? जी सर। ये साइकिल्स ड्रा करने हैं, उसके जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो साथ में लिखनी है ब्रीफली उस चार्ट के ऊपर। अब ये देखें, अब यही आपकी एक्सपर्टीज होगी, यही मैंने देखना है कि आपने कितना सीरियसली उसको लिया है, कि आपने कैसे उसको वो जो साइकिल कैसे कहाँ से लिया है, और फिर उसमें आपने वो जो प्रोसेसेस हैं वो कितने प्रिसाइजली और किस तरह से प्रेजेंट किए हैं, वहाँ पे कैसे लिखे हैं। सिंपल सीधे सीधे फिक्रे लिख दिए हैं या उनकी कोई अच्छी प्रेजेंटेशन की है। इसके अलावा आपने इन चारों साइकिल्स का आपने ये एक रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में मुझे सबमिट करना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो इन साइकिल्स को अफेक्ट करती हैं वो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चलिए अभी मैं नहीं से शुरू करना चाहता, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। ठीक है जी, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो जो आप क्लास कह रहे थे कि एक दिन कर लें तीनों, तो वो ट्यूसडे फ्री है? अब ट्यूसडे, अब आप लोग माने नहीं उस वक्त, तो अब तो आगे रमजान आ सर रहा है, तो रमजान में फिर 3 पीरियड पढ़ाना मुश्किल नहीं हो जाएगा? ठीक है फिर सर ऐसे ही। ऐसे ही रहने देते हैं। अब चलें अगर ठीक आपको है। कोई इशू होगा, कोई और मसला होगा तो फिर देख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहने देते हैं। या अगर आपको कोई ठीक है। जरूर करना चाहते हैं, मैंने कहा था आप लोग डिसाइड करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपने नहीं किया तो मैंने समझा कि आप नहीं करना चाहते। चलें अभी भी सोच लें, आप सोच के मुझे अगले हफ्ते में बता दें। ठीक है ठीक है सर। जी, चलें जी, ठीक है फिर। थैंक यू वेरी मच जी। अब्दुल वहीद अपना माइक ठीक करवा लो भाई, आपसे क्वेश्चन पूछना होता है हमने और आप अपना माइक नहीं ठीक करवा रहे हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।